Bismillahirrahmanirrahim. Class 10. Now we are going to study chemistry. Chapter number 11, Organic Chemistry. In block 3 of chemistry, we had studied in previous week introduction and organic compound. Then we had studied classification of organic compound and diversity, magnitude, and discussed general characteristics of organic compound. Now we will discuss in this week sources of organic compounds like coal. Then move on to discuss sources of organic compounds like petroleum, synthesis of plant, etc. Then uses of organic compound. Then we will discuss alkanes and alkyl radicals. In next week we will discuss functional group, test of functional group, and then discuss exercise, MCQ, short question and long question. Clear? Today we will discuss sources of organic compound coal, in which we study coal gas, ammonical liquor, coal tar, and coke. Clear? Now start our today's lecture by discussing sources of organic compound. Organic compounds are prepared naturally by animals and plants. Organic compound naturally हमें animal और plant से मिलते हैं, as we discussed in the start of this chapter. Animals synthesize two main group of organic compounds. Animals two main group organic compounds के जो है वो synthesize करते हैं. Number one is protein and number two fats. Protein are meat, mutton, chicken and eggs, etc. Fats are present in milk and butter. Clear? Plants synthesize carbohydrates, protein, fats as well as vitamins. Plants की synthesis में ये चारों चीजें आती हैं. अब देखते हैं. Dead plants buried under earth crust are converted through biochemical processes to coal, petroleum and gas. लिविंग प्लांट तो हमारे पास ये चार प्रोडक्ट देते हैं जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन. और डेड प्लांट्स जो कि आपकी अर्थ के अंदर बरीड हो जाते हैं, वो भी यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं थ्रू बायोकेमिकल प्रोसेसेस अंडर अर्थ क्रस्ट एंड फॉर्म कोल, पेट्रोलियम एंड गैस, जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं. क्लियर? These materials are the main sources of organic compound. ये हमारे main sources हैं organic compounds के. हमें इन तीनों चीजों से, नेचुरल गैस से, पेट्रोलियम से, कोल से बहुत ज्यादा organic compounds मिलते हैं. We can get thousands of organic compounds by the destructive distillation of coal. अगर हम कोल की destructive distillation करें तो हमें thousands of organic compound मिलते हैं. And फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम की, और अगर पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाए डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की रेंजेस पे इसकी सेपरेशन होती है, तो भी हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं. फर्दर इनकी डिटेल डिस्कशन हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. क्लियर? नाउ डिटेल्स ऑफ ईच सोर्सेज आर गिवन इन अ फिगर. हमारे पास ये फिगर दी गई है जिसमें हमें सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिटेल दी है. एनिमल से हमें प्रोटीन और फैट्स मिलते हैं, उसके आगे उसके सोर्सेज बताए हुए हैं. प्लांट, लिविंग प्लांट और डेड प्लांट के आपके पास प्रोडक्ट बताए गए हैं और उसके सोर्सेज भी बताए गए हैं. क्लियर? इसी तरह आप यहाँ से देखेंगे और इसको मेमोराइज करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कोल. Coal is a blackish complex mixture of compound of carbon, hydrogen, oxygen. It is also contains small amount of nitrogen and sulfur compounds. Clear? Coal was formed by decomposition of dead plants buried under the earth crust million of years ago. उन्होंने कहा है कि कोल की बेसिक फॉर्मेशन कब होती है, जब आपके डेड प्लांट जमीन के अंदर काफी सालों तक रहें, तो फिर उसकी डिकम्पोजिशन होकर वो क्या प्रोडक्ट हमें देते हैं? कोल देते हैं. कार्बनाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन. जब कभी ट्रीज की जो वुड्स होती हैं वो आपकी जमीन के अंदर दब जाएं और वो
कन्वर्ट हो जाए किसमें, कोल में, तो उसको क्या कहा जाता है, कार्बनाइजेशन कहा जाता है। इट इज अ वेरी स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस, ये बहुत ही स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। इट्स एन ऑब्वियस फैक्ट, जब इनको मिलियन ऑफ ईयर्स लग रहे हैं तो ये स्लो केमिकल प्रोसेसेस हैं। It takes place in the absence of air under high pressure and high temperature over a long period of time. ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, एब्सेंस ऑफ एयर में जाहिर बात है जमीन के नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे एयर का प्रेशर होता ही नहीं, ठीक है, और टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है क्योंकि हम अर्थ की कोर के बहुत नजदीक जाते जाते हैं। सो इसको काफी टाइम लगता है, अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, इतना टाइम के बाद आपके पास प्रोडक्ट आता है। वुड कंटेन अबाउट 40% कार्बन, जो आपकी वुड होती है उसमें 40% कार्बन होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंडिंग ऑफ कार्बनाइजेशन प्रोसेस 4 टाइप ऑफ कोल आर फाउंड, ठीक है। कार्बन की कंपोजिशन पे और कन्वर्जन और प्रोसेस ऑफ कार्बनाइजेशन पे बेस करते हुए हमारे पास 4 टाइप ऑफ कोल होते हैं। These types differ with respect to carbon content, volatile material and moisture. बेसिकली कार्बन कंटेंट पे बेस करते हुए हमारे पास अलग अलग कोल की टाइप्स आ जाते हैं, उनके वोलेटाइल नेचर, उनमें मौजूद मॉइस्चर के बेसिस पे भी डिस्टिंग्विश फैक्टर आते हैं। Here we have types of coal, peat, which have almost 60% of carbon content, और इसका यूज क्या है बेटा, इट इज inferior quality coal used in kiln, ये kiln में यूज किया जाता है ज्यादातर। लिग्नाइट है, इसमें 70% कार्बन होता है। इट इज अ सॉफ्ट कोल यूज इन थर्मल पावर स्टेशन, ये जहां से हमारे पास जनरेशन होती है पावर की, उस पावर स्टेशन में आपके पास लिग्नाइट कोल यूज किया जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है बिटुमिनस, जिसमें आपके पास 80% कार्बन कंटेंट होता है। ये वो कोल है जो आप लोग हाउस होल्ड में यूज करते हैं कॉमनली। उसके बाद आपके पास सुपीरियर क्वालिटी कोल आ जाता है एंथ्रासाइट, 90% कोल। इट इज यूज इन इंडस्ट्रीज। हैवी कोल है, सुपीरियर क्वालिटी कोल है, इसलिए इंडस्ट्रीज में यूज होता है फॉर मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर आवर सोसाइटी। क्लियर? नाउ वी हैव अ डायग्राम which is distinguished between coal types. Number one is peat, then lignite, bituminous and anthracite. ठीक है, ये आपके पास इनकी कार्बन कंटेंट और प्रेशर के बेसिस पे, टाइम कंज्यूमिंग के बेसिस पे, अर्थ की लेयर्स को डिस्टिंग्विश करते हुए आपको बताया गया है कि लोअर क्वालिटी से हायर क्वालिटी कोल में क्या डिफरेंस है। क्लियर? Coal has become a major source of organic compounds because of destructive distillation. अब जो प्रोसेस है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का, इसकी वजह से कोल की डिमांड इंक्रीज हो गई है। क्लियर? What is destructive distillation? A strong heating of coal in the absence of air is called destructive distillation. एक तो हमें अच्छे से पता है कि एयर की प्रेजेंस के बगैर इसकी नेचुरल फॉर्मेशन हुई। देन जब आप कोल को फर्दर हीट करें इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, ठीक है। और ये प्रोसेस कोल की इम्पोर्टेंस को और इंक्रीज कर देता है। एज वी नो, कोल कंटेन एलिमेंट, कोल के पास एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। So, destructive distillation of coal provides us large amount of organic compound along with a few inorganic component. आपको अच्छे से पता है कार्बन और हाइड्रोजन ऑर्गेनिक में आते हैं बेसिकली, और नाइट्रोजन, सल्फर ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में के साथ भी इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो हमारे पास जब इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल एज सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन भी होती है। क्लियर? These products are, कौन कौन से हैं, अब हम उसकी डिस्कशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कोल गैस। जो आपके पास प्रोडक्ट बनते हैं आफ्टर द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल गैस, उसमें नंबर 1 पे आता है कोल गैस। कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? इट प्रोड्यूस हीट व्हेन बर्न्ड इन एयर। अब ये क्या करता है, जब कोल गैस को हीट किया जाए तो वो क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी जब उसको बर्न किया जाएगा एयर में। क्लियर? यूजेस, कोल गैस के यूज क्या हैं? देयरफॉर इट इज मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री। जब इसकी हवा के साथ बर्निंग से हीट प्रोड्यूस होती है, दैट्स व्हाई इसको इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। क्लियर?
It is also used to provide an inert or reducing atmosphere in various metallurgical process. हमें एक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में एक एटमॉस्फेयर की डिमांड होती है, सो ये उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, ये प्रोवाइड करता है एक इनर्ट और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर फॉर मेटलर्जिकल प्रोसेस. क्लियर? नाउ वी हैव अनदर प्रोडक्ट नोन एज अमोनिकल लिक्विड. इसकी डेफिनेशन देखें. अमोनिकल लिक्विड इज अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर. अमोनिया गैस का सोल्यूशन वाटर में क्या कहलाता है? अमोनिकल लिक्विड कहलाता है. यूजेस क्या है बेटा? इट इज यूज टू प्रिपेयर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स. आपको अच्छे से पता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आपकी फील्ड के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, तो इसका वहां यूज आता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज treated with sulfuric acid it produce ammonium sulfate, a fertilizer. जब आप इसको ट्रीट करवाएं किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो एक और फर्टिलाइजर बनाता है, ठीक है, जिसका क्या नाम है? अमोनियम सल्फेट. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कोल tar. What is coal tar? Coal tar is a thick black liquid. ये thick blackish liquid होता है. It is a mixture of more than 200 different organic components, mostly aromatic. दो बातें यहाँ पे की गई कि 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट का मिक्सचर होता है ये, और इसमें ज्यादातर कंपोनेंट्स किसके होते हैं? एरोमेटिक कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है. These compounds are separated by fractional distillation, और इन compounds को fractional distillation के basis पे separate किया जा सकता है. Fractional distillation means they can be separated by different boiling points or different heating strategies. Some of the important aromatic compounds are benzene, phenolphthalein, aniline. ये सब हमारे पास aromatic components हैं. These chemicals are used to synthesize. ये chemical हमारे पास drugs, dyes, explosive paints, varnisher, plastic, synthetic fiber, pesticide, इन सब को बनाने में important है. Besides these valuable chemicals, the black residue of coal tar called pitch is obtained. अब हमारे पास बेटा इन सब इम्पोर्टेंट केमिकल्स के अलावा एक ब्लैक रेजिड्यू बचता है किसका? कोल टार का, जिसको क्या कहा जाता है? पिच कहा जाता है. इट इज यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड एंड रूफ. हमारे पास ये रोड्स के ऊपर इसको यूज किया जाता है फॉर सरफेसिंग देम, स्मूथिंग देम. ठीक है. टू यूटिलाइज इट मोर एंड मोर. क्लियर? Another product is coke. Coke is about 98% of carbon. It is the left behind residue of coal. Previous slide में हमने पढ़ा था coal tar का residue, that is pitch. अब आपके पास coal का जो residue बचता है वो क्या होता है? coke कहलाता है. When coal is subjected to destructive distillation, it loses its all volatile component. जो volatile component होते हैं, evaporating component होते हैं, वो सारे वहां से जब निकल जाते हैं तो आपके पास जो रेजिड्यू बचता है एट द एंड आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, उसको क्या कहा जाता है? उसको कोक कहा जाता है. यूजेस. इट इज मेनली यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, स्पेशली आयरन. ठीक है. आयरन की एक्सट्रैक्शन के दौरान इसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है. एंड अदर यूजेस, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, इसको यूज किया जाता है. Now we are going to discuss or test yourself number 11.2. We have 5 questions here. Name the gas which are found in coal gas. अभी हमने डिस्कस किया, आपको अच्छे से पता है. मैं करके इसका आंसर देंगे. इस कोल tar is a compound. आप प्रीवियस स्लाइड में जाके देखें और इसका आंसर दें और इसकी इंपॉर्टेंस, इसका यूज भी बताएं. व्हाट इज कोक? इसका भी यूज आपने यहाँ पर लिखना है. Which is the best quality of coal? टेबल से आप जाके देखें. एंथ्रासाइड इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल. इसका यूज और इसकी कार्बन कंपोजिशन भी लिखेंगे. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन आपके पास मौजूद है, वो भी आप मेंशन करेंगे. क्लियर? Now we have MCQs from this topic. Number 1 is coal having 90% carbon content is called. आपको अच्छे से पता है superior quality coal में होता है 90% carbon, and the best answer here is anthracite. Clear? C option is the right option. Another MCQ from this is conversion of wood into coal is called carbonization. A option is the best option over here. इस तरह के MCQs आप सारे memorize करेंगे इन topics के. Now we have short question.
राइट डाउन द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। आपके पास टाइप्स ऑफ कोल के नेम हैं, हीट 60% कार्बन, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। इफ दे मेंशन द यूजेस तो आप इसके साथ इसके यूजेस भी लिखेंगे। क्लियर? नाउ वी हैव अनदर शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज कोक। आप इसकी डिस्क्रिप्शन डालेंगे। कोक इज 98% ऑफ कार्बन, इट इज अ लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल। इसकी डेफिनेशन एंड यूजेस। क्लियर? इसी तरह बेटा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्क्राइब कोल इन डिटेल, डिस्क्राइब कोल प्रोडक्ट्स इन डिटेल, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ कोल इन डिटेल। तो आपने क्वेश्चन को समझते हुए अपने आंसर को वहां पे लिखना है। क्लियर?